So today we are going to start new chapter, chapter 6, lines and angles. It's a very easy chapter, very simple chapter. Very interesting also. बहुत मज़ा लगा आप लोगों पर के, बहुत मज़ा लगने वाला है, ठीक है सर. Just you need to know the some basic concept. क्या हो रहा है इसमें, क्या चीज़ है, लाइन क्या है, एंगल्स क्या है. ये सब एंगल लाइंस का खेल है यहाँ पर. The full chapter is a game of what? Angles and line. If that is clear now, concept is clear now. Why do you have to add angles? You have to find the angles, unmissing angles. Okay, so you have to deal all these topics in the chapter. So let us start with the basic concept. Okay, basic terms and definition. Okay, so our first topic is your basic terms and definition. Some basic terms and definition. The first definition that I like to conclude, that is your line segment. Line segment. And I hope you are very familiar with this word. You got many a time in your junior classes, in the earlier classes. So who can say me what is line segment? What is line segment? Line segment is a line that has two end point. Very good, very good. A line which has two end points, isn't it? Or line segment means what? There's a word used, segment. Segment means what? Part. Line segment is a part of a line. A line segment is a part of line which has two ends point, I hope it is clear. For example, this is a line segment. First end is what? A, and another ending point is what? B. So it is called a line segment. It can be in any direction, like C, D. It has two end point, means two terminal, and hence we call it as a line segment. I hope it is very clear to everybody. Yes. Okay. Our next point, that is your ray. What is that? Ray. Now what is ray? Ray is also a part of line which has one end point. Clear? Means a ray is also a part of line. A ray is also a part of line which has one end point, which has only one end point, one terminal. Is called ray. For example, okay, suppose the initial point is A and it is going to the enormous distance, to the infinite distance. So we call it what? So end point is A. Can you give example of a ray? Example like sun. The sunlight. We know that the sunlight originates from sun. It starts from what? Sun. If there is a sun, it starts from sun, the ray. So where it goes? To what extent it goes? Do it has an extend point? Do it has an ending point? So we can say the sun ray. We are not calling sun line. Sun line segment. We say it. What we say? Sun ray. Because it has one starting point. It has one initial point. And we don't know where it is ending. At what extent it will be ended. That is why we call it as a ray. We call it as a sun ray. Light ray. We use the ray. Because what? We know the origination. But we know that we do not know the termination. Where it usually ends. I hope this basic terms is very clear. Okay. Now our next concept is number 3. Who can say me about point? What is point? Anyone? Very simple word, na? But anyone can say me what does the meaning of word point means? Who can say what is point? A dot is called a point. What is a point? A dot is called a point. So write it down. A dot is called a point. Yes, sir.
तो ये पॉइंट क्या है, मानो कि पॉइंट पी है. I hope you can clear it. You can understand it, what I'm saying? Very good. And our basic term is, our next term is your collinear point. Still have this part? Okay. Our next concept goes here. That is your what? That is your what? Collinear point and write it down. Shall I let me wrap this, okay? Our next concept is your the points, about points. About points. Very well, write it down, very good. That is your collinear point and non-collinear point. What is that? Collinear point and non-collinear point. Collinear point and non-collinear points. Okay. Now let me make you understand with a basic example. All right. So what is collinear point and what is non-collinear point? Means when any two or more points lie in a same line. Suppose consider such point A, point B, and point C. This point A, point B, point C. They lie in the same line. If I make a straight line upon them, you can see a what? Suppose my line is not so straight. Then also I'm trying to make it. You can see this is straight line, isn't it? But you can see this line overcomes all these points. It crosses over all the individual points in a path. So we can say that point A and point B and point C are what? Are collinear. I hope it is clear. Now this is the example of collinearity. It is called collinear. Linear. Now if I say you what is non-collinear, suppose there is three distinct points. In this part I have given three different points: A point, B point, C point. Now can they come in a same line? Look, let me join A, B. Does C comes here in this line? For joining C, I have to do another line. That means what? It is these points are not collinear. They are not lying in a same straight path, not a same straight line. So we cannot say it is a collinear. I hope it is clear to you. Okay, it is called non-collinear point. Non-collinear point. How you felt? यहाँ पर देखो. What is collinear point? When two or more lie in a same plane, same plane या फिर same line is called what? Collinear point. Or what is non-collinear point? When two or more points do not lie in the same line. Do not lie in same line is called what, my dear? Is called non-collinear point. Non-collinear point. I hope it is clear. Collinear points और non-collinear point का difference पता चल गया? Very good. तो याद रखना चीज को. Okay. Now let us move to the next point. That's next definition. Okay, fine. Next topic is what? Angle, vertex and arm. क्या बोला मैंने अभी? Next topic is what? Angle, vertex and arm. Very important. Now what? Who can say me what is angle? आप बड़े समझ गया? You have already understood ray. What is ray? Ray has a one initial point या फिर one interterminal point. It's called what? Ray. And what is angle? When two ray originate from the same point. Suppose ये point P था, यहाँ से एक ray निकला और एक ray निकला, तो बीच से जो gap है ना, कितना उसको क्या बोलते हैं हम लोग? That is called angle. I hope it is clear. That is called angle. Clear? Now what is? What I am saying again. I am repeating. What is angle? Angle is what? The distance between या फिर the measuring between the two rays. Okay? The measuring between the two rays. तो ये point है, ये point P है, साहब P से दो रे निकला, तो ये दूरी जो क्या बोलते हैं हम लोगों को? या मैं समझ में आई कि नहीं बात जो? और इसको क्या बोलता है? ये बाहु को क्या बोलता है? इसको बोलता है वर्टेक्स. इसको क्या बोलता है? इसको क्या? एक मिनट. ये जो बाहु है ना, इसको क्या बोलता है? आर्म्स बोलता है. क्या बोलता है इसको? और ये पॉइंट को बोलता है हम लोग वर्टेक्स. ये पॉइंट को बोलता है हम लोग वर्टेक्स, और उसको बोलता है हम लोग एंगल. क्लियर हो गया? ये गैप को बोलता है हम लोग एंगल्स. दैट जो डाल को क्या बोलता है हम लोग? Yeah, we call it as arm. There's two arm in angle.
and this called vertex. Any doubt? Any doubt anyone? Okay, let me write a definition for you. Okay, fine, very good. So बहुत अच्छा सा मैंने definition लिख दिया आप लोगों के लिए. So what is angles? An angle is formed when two ray begin from same end point. समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर दो रे यहाँ पे दो रे है, अगर वो एक ही सेम पॉइंट से निकला तो जो गेप होगा उसका जो मेजरिंग होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट? एंगल. क्लियर? ओके. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज द मेजरिंग बिटवीन द टू रेज हैविंग कॉमन ऑरिजिनेशन. देखो ये कॉमन ऑरिजिनेशन है कि नहीं, पी पॉइंट जो पी से दो रे निकला, जो इतना गेप होगा. सपोज ये मैंने क्या किया देखो. नाउ सपोज नाउ दिस इज टू रे कंसिडर. आई एम जस्ट मेकिंग इट ए कॉमन पॉइंट. दिस इज अ कॉमन पॉइंट. सो दिस दूरी को क्या बोलेगा इसको? ये है इसका एंगल. क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज व्हाट इज वर्टेक्स? Vertex is what? The common point of two rays is called vertex. So simple. The common point of two rays is called what? Vertex. मतलब जैसे ये common point को क्या बोले? जहाँ से शुरू हुआ है, it is called vertex. जैसे कि ये कोना को क्या बोलेगा हम लोग? ये क्या बोलेगा इसको? Vertex. Any problem? Next देखो, what is arms? The rays making an angle is called arm. जो ये बाहु है, जो rays हो रहा है, ये जो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग arms. Clear हो गया ना? How many arms in a angle are there? There is two rays. Means two rays are there. Means two arcs are there. Means two side. समझ में आ रहा है कि नहीं? Side भी नहीं बोले, इसको rays बोले, two rays. I hope it is very clear. Now let us jump to next basic point. Clear? Now let us understand the types of angles. Types of angles. ये ध्यान दे यहाँ पे. Types of angles. So सबसे पहले क्या है? मैं आपको example देता हूँ सबसे पहले. But then I will write a definition for you. Okay? So what is zero angle? First is what? जीरो एंगल मतलब क्या है? जैसे कि एक लाइन है, इसका ऊपर और एक लाइन है, दो रे की इसका ऊपर ही है, तो दिस पॉइंट. व्हाट इज एंगल? व्हाट इज एंगल यार? जीरो नहीं है क्या? एक का ऊपर और एक लाइन है, तो जीरो क्या होगा? एंगल कब बनेगा? जब एक रे का ऊपर और एक रे उठते रहेगा, आस्ते आस्ते बढ़ते रहेगा कि नहीं? एंगल बढ़ते. 90 हो गया अभी क्या हो गया? 180, 270, फिर से घूम के आ गया वापस 360. अंडरस्टूड? So one line is overlapped by another line, means one ray is overlapped by another ray. So it is what? इसको क्या बोलता है? 0 degree. इसको बोलता है जीरो एंगल. It is called जीरो एंगल. Just try to feel it. Very easy. जरूरत नहीं है, लिखाना जरूरत नहीं है. It is you already got in your lower classes. Next is your acute angle. क्या बोला? Acute angle means what is acute angle? If the theta means what? Any angle. If the theta is less than 90 degree but more than 0 degree, it is called what? It is called your acute angle. What sir? You got it already, isn't it? Definition जरूरत है बोलो नहीं. Next is your right angle. Right angle means what? When the angle between the two rays is exactly what? 90 degree. Suppose what है? थीटा मतलब क्या है? थीटा मतलब एंगल है. ठीक है? थीटा x भी लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो, आपका मर्जी है. So here theta is exactly equal to 90 degree. जब ये दिखाई मिलेगा, it is called what? It is called your right angle. कोई बोलेगा, कोई definition चाहिए तो बोलो. चाहिए मेरे definition? Okay, you can say. Okay. Next is your obtuse angle. Means what is obtuse angle? When the angle is more than 90. When the angle is more than 90. It is theta is more than 90. But क्या? Less than 180. as समझ में? Means here theta is more than 90 but less than 180 degree. It is called what? It is called your obtuse angle. Any problem? Next है आपका straight angle. क्या बोला मैंने? Straight means what? मानो कि यहाँ पे ये 90 था, फिर से 90 यहाँ पे आ गया. मतलब ये जो पूरा एक लाइन, पूरा स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट P था. सो कितना हो रहा है? 180 हो रहा है कि नहीं? ये 180 डिग्री हो रहा है. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मीन्स यार थीटा इज 180. मीन्स थीटा इज योर इक्वल टू 180 डिग्री. मीन्स कम्प्लीटली स्ट्रेट. ये पेन पकड़ो, पूरा स्ट्रेट. ये कितना डिग्री है आपस में? इट इज कॉल्ड योर सो इट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. इट इज कॉल्ड व्हाट? स्ट्रेट एंगल. एनी प्रॉब्लम टिल हियर? हाँ, आगे जाए. क्लियर? जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल. एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट इज व्हाट? अगर मोर देन 180 होगा तो कितना होगा? देखो, मोर देन 180 तो ऐसा होगा देखने में. सो व्हाट? सपोज दिस इज योर फर्स्ट रे, सेकंड रे इज हियर. अगर यहाँ पे होता तो 180 होता,
है कि नहीं? अभी 180 को भी क्रॉस कर चुका है, मीन्स हियर थीटा इज मोर देन, हियर थीटा इज व्हाट, मोर देन 180, दैट मीन्स व्हाट, मोर देन 180, समझ में आ रहा है कि नहीं? बट लेस देन क्या होगा, बट लेस देन 360, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड दिस एंगल इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्स एंगल, पता है ना चीज को, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, मीन्स हियर थीटा इज व्हाट, थीटा इज लेस देन 360 बट मोर देन, ऐसे लिखो, हाँ, लेस देन 360 बट मोर देन व्हाट, मोर देन 180, वेरी गुड, मोर देन 180, याद रखना, इट इज योर कॉल व्हाट, इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्स एंगल. द लास्ट एंगल इज व्हाट, द लास्ट एंगल इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल. जीरो एंगल, जीरो एंगल क्या था, हाँ, तो एक ही लाइन के ऊपर लाइन है कि नहीं, एंड व्हाट इज एक्यूट एंगल, द एंगल इज लेस देन 90 बट मोर देन, व्हाट इज राइट एंगल, इट इज perpendicular, what is oblique angle, more than 90 less than 180, what is straight angle, straight line 180 degree, है कि नहीं? Reflex angle more than 180 but less than 360, convex angle, अभी हम लोग तो टोटल होगा आपका adjacent angle, come on, what's that, हाँ लिखो adjacent angle, अभी हम टॉपिक कैसे लिखेगा, adjacent angle, adjacent, नेक्स्ट टॉपिक होगा complementary angle, complementary angle, नेक्स्ट होगा supplementary angle, what are the complementary angle, adjacent angle, supplementary angle. इसके बाद में हम लोग और दो पॉइंट सीखेगा और वो है हमारा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर और नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल ऑब्जेक्ट.
are primarily used, mostly used in subject, mostly. So now we'll understand this important point. This is our next matter to understand. Who can say what is adjacent angle? Who can say what is adjacent angle, complementary angle, supplementary angle, linear pair? कॉम्प्लीट एंगल समझ में आएगी नहीं? कॉम्प्लीट एंगल मीन्स व्हाट? कॉम्प्लीट एंगल क्या था कि अगर फिर से बोल रहे हैं हम इस चीज़ को, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, इसका ऊपर लाइन है 0 डिग्री, ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 180, ये 180 से ज़्यादा रिफ्लेक्स एंगल, अब फिर से घूम के वही गया, फिर से घूम के वही गया, मतलब यहाँ से एंगल मिला के यहाँ तक क्या होगा? इट इज़ कॉल्ड 360 डिग्री. ठीक है, मीन्स यार थीटा इज व्हाट? थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री. And so it is called what? It is called complete angle. Do remember this one, complete angle. That is सर्कल का एंगल कितना होता है? सर्कल का एंगल 360 होता है. इतना क्लियर हो गया आपका? Now let us understand this basic point. What are these? What is adjacent angle? Who can say? Anyone can say? दो एंगल. नहीं. देखो, इधर देखो आप, मेरा बात सुनो. What is an adjacent angle? इसको समझते हैं. Means अगर दो एंगल एक ही पॉइंट में, समझ में आ रहा है क्या बोला हम? इसका एंगल डिफिनेशन कहाँ पे हो रहा है? एक ही पॉइंट है उसका, मीन्स दो एंगल का वर्टेक्स एक ही है. लास्ट क्लास वी हैव लर्न दैट व्हाट इज वर्टेक्स? व्हाट इज वर्टेक्स? द पॉइंट फ्रॉम वेयर द एंगल फॉर्म और द रे अराइजेस. व्हाट इज एंगल? Angle is the part between the two arms. हाँ, ये दो, व्हाट इज रे? जिसका एक ही इनिशियल पॉइंट होता है और ये कभी भी एंडिंग नहीं होता है. ये तो रे था ना. मीन्स व्हेन टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सिंगल पॉइंट, इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड एंगल. इट इज कॉल्ड, ये एंगल था कि नहीं? हाँ, यहाँ पे कितना एंगल है? एक ही एंगल है. हम ये पॉइंट से और एक रे बना दिया, अभी कितना एंगल है? दो एंगल है. तो ये दोनों आपस में क्या एंगल है? एडजेसेंट एंगल. बोलता ना पड़ोसी, तेरा क्या पड़ोसी दीपशिका है? विल यू कॉल योर पड़ोसी दीपशिका? व्हाई यू नॉट कॉल? इसको अपना पड़ोसी क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि तुम्हारा घर से घर बगल में नहीं है, इसलिए एडजेसेंट नहीं है. अगर बगल में होता, दुश्मन भी होता, तभी वो तुम्हारा पड़ोसी होता. समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो गया नहीं? मेरा पड़ोसी वो लोग है, ठीक है ना? दुश्मन भी हो तो अरे मेरा तो पड़ोसी तो है ना कम से कम. तो सेम थिंग इज हियर ऑल्सो, कि अगर दो एंगल एक ही पॉइंट से निकल रहे, चिंग चिंग, है कि नहीं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपस में क्या है? एडजेसेंट एंगल. समझ में आया? ओके, वेरी गुड. नाउ ये बहुत बार यूज होने वाला है, बार यूज होने वाला है, इसलिए हम लोग आई विल मेक यू एक्सप्लेन विद द डेफिनेशन ऑल्सो. Now let us come to this point. What is complementary angle? Who can say? Anyone can say? What is complementary angle? Who can say me? कोई है इधर पे? Can you say बाबू? बोल सकोगे? ट्राई करो. हाँ, मतलब किसी भी दो एंगल मिल गया अगर 90 होता है, किसी भी दो एंगल मिल गए 90 होता है, देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. एग्जाम्पल, आई एम गिविंग विद एग्जाम्पल, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर. व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? फील इट माय डियर, दो फील करो इस चीज़ को. मानो कि ये एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, दोनों एंगल है कि नहीं? मानो कि ये 30 है, ये कितना है? 30 है, और ये मानो तुम्हारा 60 है. ये ए, मानो कि ये बी सी डी. देखो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल मिले कितना हो रहा है? 90 हो रहा है कि नहीं? तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. मीन्स 60 + 30 क्या हो रहा है? 90 हो रहा है कि नहीं? तो ये आपका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. क्या समझ में नहीं आया? आया समझ में? अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, देखो मानो कि ये एक एंगल है, ठीक है, ये एक एंगल है, ये अगर x से नहीं पता और ये 40 है, लेकिन हमको बोल दिया कि 40 + x क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. 40 + x एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. तो व्हाट कैन यू से? तो x का वैल्यू क्या होगा?
हीरो 50 कैसे मालूम चला? हाँ वेरी, तो कॉम्प्लीमेंट्री दे चुका है. It is definite, we are sure, we are certain, we are definite that what? That these two angle will make 190 degree because they are complementary. That means what? 40 plus x will definitely what? Will be x 390. Then is what? X equal to what? 90 minus 40. That is x equal to 50. That means we got the value of x. It as what? As a 50. Any problem? So this is the use of complementary. देखो सिर्फ ऐसा भी नहीं हो सकता है, आप जैसे भी कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल मानो ऐसे है, कैसे मानेगा? एग्जांपल के तौर पे ऐसे एक एंगल और एंगल ऐसे है, तो ये दोनों मिलकर भी कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं. ये दोनों मिलकर भी कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं. अगर ये 45 हुआ तो मानो कि ये x है. इफ़ आई से यू, ये ट्राइंगल है मानो, ठीक है, ये ट्राइंगल है. इफ़ 45 प्लस x इज कॉम्प्लीमेंट्री, इफ कॉम्प्लीमेंट्री, what find x? Who can find x? कितना हुआ x? हाँ 45. गुड, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये दोनों एंगल मिले कॉम्प्लीमेंट्री, दैट मीन्स दोनों मिलकर 190 होगा. अगर 90 होगा दैट इज हम लोग क्या बोलते हैं, देयरफॉर 45 प्लस x इक्वल टू व्हाट? 90. x इक्वल टू व्हाट? 90 माइनस 45. x इक्वल टू व्हाट? 45. एनी प्रॉब्लम? हो गया सर, क्या प्रॉब्लम है? आया समझ में? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज, वी अंडरस्टूड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल. देखो हम आपको सिर्फ अभी डेफिनेशन नहीं दे रहे, जैसे आपको समझा रहा है क्या है समान टू. लेटर आई विल गिव डेफिनेशन. ओके, सो हम डेफिनेशन भी आराम से लिख सकते हैं इसको. वी कैन इजीली राइट डेफिनेशन. व्हाट? इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 190 डिग्री देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. हो गया डेफिनेशन. ओके, इफ यू रियली अंडरस्टूड नाउ यू कैन फॉर्म योर ओन डेफिनेशन. ओके, सो विच इज बेटर? डेफिनेशन सीखना बेहतर है ना अपना खुद जान के दे देना बेहतर है? वही बेटर है कि नहीं? सो ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल. देखो ये सब ना क्लास 10 11 12 बच्चों भी नहीं पता, कभी पता है. मेन थिंग इज बेसिक इज नॉट क्लियर. ये सब बेसिक है, सब बेसिक है. ओके फाइन, लुक हियर. सप्लीमेंट्री क्या है? अगर दो एंगल मिलके 180 हो रहे हैं, एग्जाम्पल मानो कि यही है, ऐसा मानो एक्स्ट्रा लाइन है कि नहीं, मानो कि ये x है और ये y है. इफ x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री देन x and y are called what? Are called supplementary. Are called supplementary angle. क्या क्लियर हो गया? मीन्स अगर दो एंगल का सम अगर 180 हो, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री. इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया कि नहीं? वेरी गुड. सो इसे ये सिर्फ ऐसा नहीं है, तुम ऐसा भी हो सकता है. मानो कि ऐसा हो गया, ऐसा है, एक रेक्टेंगल है, ये x है और ये y है, तो ये हो सकता है 180, तभी भी 180 हो सकते हैं. एनी प्रॉब्लम? हाँ, तो यहाँ पे x, तो यहाँ अगर x एंड y इक्वल टू 180, तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं? देन x एंड y आर व्हाट? आर सप्लीमेंट्री. एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? नो, इट इज क्लियर. नाउ हु कैन से द आंसर? मानो कि y आपका 70 है, व्हाट कैन यू से अबाउट x? कितना होगा? 110. इफ y is 70, x will be 110. इतना समझ में आया? क्योंकि मालूम चला था कि 180 से इसको काटेगा तो इतना मिल जाएगा. अगर मानो कि यहाँ पर x का वैल्यू दे दिया आपका 80, व्हाट कैन यू से अबाउट y? 100. Why? How can you say 100? 180. How? Why are you minusing 100 or 180? Why are you subtracting 100? Because we know that x and y makes what? 180. So if you subtract 80 from there, what left? 100. So definitely the value of y should need to be what? 100. Then only the sum of two will get 180 angle. I hope it is clear. और next point to understand is what linear pair. इसका तो भरपूर यूज है. Every time you will use this. The short form of
linear pair is LP. What? LP. LP means linear pair. Linear मतलब क्या है? तो हिल सकता टें टें, ठीक है ना? आपको एग्जांपल दिखाता हूँ. Give the scale. Subham, come here. Give another scale. हाँ, that scale ना वो ला. हाँ, इधर आओ. पकड़ो इसको. इसको क्या? इसको पकड़ो. So this one ray, okay? हाँ, इधर आओ. हाँ, पकड़. This what? ये point है यहाँ पे. हाँ, यहाँ से एक रे निकला. चूफ. यहाँ से भी एक रे निकला है. ठीक है, इसको पकड़ो, ऐसे पकड़ो. ओके, ये ऐसा करो तुम. हाँ, क्या एक एंगल है कि नहीं? हम क्या करते हैं, बीच में और एक एंगल गोप दिया. इसको ऐसा ऐसा वाला एंगल है कि इसको हिला सकते हैं हम. अभी एंगल एक है, यहाँ पे एक एंगल है कि नहीं? यहाँ भी अलग एंगल है. तो आपस में किसको बोलते हैं? लीनियर पेयर. इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया तो अलग अलग एंगल हो गया. इसको तो टेढ़ा कर दिया फिर अलग अलग एंगल हो गया. दैट इज़ व्हाट. इसको जितना भी जैसे भी घुमाने पर क्या हो रहा है, हमको अलग अलग मेजर का एंगल मिल रहे हैं. सो आपस में ये सब क्या है? लीनियर पेयर. लीनियर पेयर है चेंज. दोनों का साम तो सेम रहेगा लेकिन एंगल अलग अलग हो गया. अभी अगर ये टोटल अगर मानो कि 90 है तो 100 मान लो. इफ द एंगल इज 100, आई मानो कि ऐसे 50, तो कितना होगा? 50 होगा. अगर ये 40 हो गया तो कितना होगा? लेकिन साम तो 100 हो रहा है ना बेबी. अगर 30 हो गया अभी कितना हो रहा है? ये 70 हो रहा है. लेकिन 70 + 30 कितना हो रहा है? वो कांस्टेंट हो रहा है. लेकिन अगर 20 हो गया, ये बोलो अभी कितना होगा? अच्छा, ये 20, ये कितना होगा? 80 हो रहा है कि नहीं? तो टोटल कितना हो रहा है? टोटल वेरी गुड. अगर ये मानो कि ये 10 हो गया, अभी बोलो कौन सा 9? ये कितना है? ये कितना है? टोटल कितना है? तो 100 का 100 तो रही है. इसका वैल्यू चेंज हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है? टोटल सेम ले रहा है. मानो कि इस तरफ अभी 70, अभी इस तरफ 70, इस तरफ कितना होगा? 12. सो ये लोग क्या है? इसमें लीनियर पेयर है. यू कैन मूव द डायरेक्शन, okay, and you will get different values but total remains same. It is called linear pair. याद रहेगा कि नहीं? मानो कि अगर ये 180 है, ये 180 है, अभी इसको खड़ा के बीच में अभी कितना होगा आपस में? 90. अगर मानो कि ये ऐसा हो गया, इस तरफ 70, अभी कितना होगा वहाँ पे? थप्पड़ खाएगा? इस तरफ 70 है, इस तरफ कितना होगा? 110. वेरी गुड. अभी इस तरफ आपका मानो कि 30, अभी कितना होगा? 180 का माइनस करोगा ना 50, कितना होगा? 130 नहीं होगा. अभी इस तरफ तुम्हारा सिर्फ 10 है, इसमें कितना होगा? ऊपर उठाओ. कितना हो रहा है? 170. क्लियर हो रहा है कि नहीं? अभी मानो कि आपस में 90 डिग्री है, अभी बीच में रख दिया, अभी कितना होगा? बीच में रख दिया. हाँ, अभी बीच में, अभी कितना होगा? 45. अब मानो कि अभी 10 है, अभी कितना होगा? वो कौन बोल सके? ये कितना है? हाँ, ये 10 है, ये कितना होगा? 80 कैसा होगा? 90 टोटली तो 90 है. ये 10 है, ये क्या 80 होगा कि नहीं? तो अगर 5 है तो कितना होगा? 85. समझ में आया? फील हो रहा है कि नहीं? फील करो चीज़ को. फील मैच है, फीलिंग है. ज़्यादा फील नहीं होगा तो जितना भी कर फायदा नहीं उसमें. समझ में आ रहा है कि नहीं? सो आप लोग जितना चीज़ दिखाए ना, सब क्या है? लीनियर पेयर है. मीन्स आप बीच वाला जितना भी हिलाओ क्या होगा? एंगल अलग अलग होगा लेकिन दोनों का एंगल मिलकर सेम होने वाला अल्टीमेटली. दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर. विल यू रिमेंबर इट? वेरी गुड. तो क्या चाहिए अब? लास्ट क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो सिंपल. लीनियर पेयर क्लियर हो गया ना? ओके, वेरी गुड. ना वर्टिकली नाम से निकल रहा है क्या? ऑपोजिट एंगल. दैट मीन्स व्हाट? अगर मानो कि 2 एंगल है, इफ देयर इज 2 एंगल, ये एक लाइन है, एक लाइन है, क्रॉस खा दिया, ये क्या हो रहा है आपस में? ये क्या हो रहा है आपस में? इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. और ये आपस में क्या हो रहा है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. एंड दे आर इक्वल. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल. अगर ऐसा भी होगा, मानो कि अभी अलग चेंज हो गया, अभी एंगल अलग नहीं हो गया क्या? लेकिन ये एंगल और ये एंगल बराबर ही होगा. ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा. अभी तो ऐसा कर दिया और अभी भी एंगल बन रहा है ना? अभी भी क्या हो रहा है? ये और ये इससे बराबर. अभी ऐसा हो गया मानो, अभी भी और ये क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है. ये अभी क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है. सो इट इज कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तुम जैसे भी करो, ये और ये बराबर होगा ही होगा. जैसे भी करो तुम, ये और ये क्या होगा? बराबर. और ये
बराबर होगा. That is why they are called vertically opposite angle. In short form we are write VOA. In short form what we are writing? VOA, and they are always equal. Will you remember it? So first definition I have written here for you. What I have written for you? That is your what? Adjacent angle. So what I have written that if two angles have the same vertex or common vertex is called adjacent angle. जैसे कि मानो कि ये एक एंगल है, साथ में और एक रे है, इट इज अनदर एंगल, लेकिन दोनों एंगल का क्या होगा, आपका कॉमन ओरिजिनेशन सेम है, तो दैट इज वाई आपस में दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड एडजसेंट एंगल. सपोज दिस इज एंगल x and this angle y. So here example, here x and y are what? X and y are adjacent. Adjacent angle. Any problem? Fantastic. Now number 2, complementary angle. Complementary angle. If the sum of two angle is 90 degree, if the sum of two angle is 90 degree, then they are called complementary angle. Then they are called complementary angle. सर मान लो एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे मान लो, जैसे कि ऐसे मान लो एक ट्राइंगल है, ये x है, ये y है. दैट मीन्स मानो कि हियर इफ x प्लस y कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, देन x एंड y आर व्हाट, आपस में क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल. कुछ तकलीफ हो रहा है, एनी प्रॉब्लम? या फिर देयर सो मेनी वे आर देयर, अगर मानो कि ऐसा है, अभी आज मानो कि इस जगह में ऐसा है कि ऐसा है, ये 90 है, ओके. यहाँ पे था तुम्हारा P एंगल Q. सो इफ हियर एंगल P प्लस Q कितना हो रहा है, 90 हो रहा है कि नहीं. सो व्हाट वी कैन से दैट हियर P and Q are what? Complementary angle. Any doubt up to here? So simple. If the sum of two angles is 90, it is called, then the angles are called what? The angles are called what? Complementary angles. Very good. Now let us write supplementary angle. Supplementary. I'm writing this part, number 3. Supplementary. If the sum of two angle is, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं हम, ये कितना होगा 180, then they are called क्या, supplementary angle. एग्जाम्पल को भी चेंज कर देते हैं. एग्जाम्पल इज दैट, सपोज नाउ कंसिडर कि एक लाइन है, ऐसा स्ट्रेट लाइन है, सपोज ये आपस में कितना 180 हो रहा है कि नहीं, ये पूरा 180 है. दैट मीन नेम इट एज अ y, इट इज x and y. सो हियर व्हाट वी कैन राइट, हियर x plus y equal to what, 180. So can we say x and y are complementary? Therefore we can say what, therefore are what,
एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसा बोल के नहीं, अलग भी हो सकता है। मानो कि एक बॉक्स है, उसका अंदर एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ऐसा बॉक्स है। मानो कि ये एंगल क्या माना जाता है, एल मान सकता है, एंगल एल, एंगल एम। अगर इफ़ एंगल एल प्लस एम 180 हो रहा है, देन ऑल्सो आई कैन से, देन हम लोग क्या होता है, देन एल एंड एम आर व्हाट, आर सप्लीमेंट्री एंगल। पूरा क्लियर कट, एक चुल डाउट है इसमें। कैन यू से इफ एनीबॉडी आस्क्स यू? हाँ, okay, very good, very nice. Now let us move to the next point. So look here, very interesting, nice. What is linear pair? If A is the sum of two adjacent angle, then angle x, y and angle y are called adjacent angle. That is, यहाँ पे लिखो कि angle x plus angle y will give the total angle, that is what, angle A. ये समझाएगा आपको। Consider example कि ये एक एंगल है, ये क्या है, ए एंगल है। ये टोटल एंगल मानो क्या है, एंगल ए है। क्या है, टोटल एंगल ए है। बीच में एक रे ठोस दिया इधर पे एडजस्टेंट एंगल बनाने के लिए, यहाँ पे एंगल ठोस दिया है पे। अब ये कुछ एंगल बन गया, सपोज मानो कि एक्स, ये क्या बन गया, एंगल वाई। अगर आप एंगल एक्स और वाई को जोड़ेगा क्या मिलेगा, टोटल एंगल नहीं मिलेगा क्या? दैट मीन्स इफ यू एड एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, व्हाट यू विल गेट, एंगल ए। सो व्हाट वी कैन से, एक्स एंड वाई आपस में क्या है, एक लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर है। क्लियर हो गया? नॉट अंडरस्टूड? हाँ, इफ आई गिव अनदर एग्जांपल, सपोज इसको ऐसे है मानो, अभी ये स्ट्रेट फ्लैट लाइन है, ये क्या है, ये फ्लैट लाइन है। क्लियर? मानो कि यहाँ पे एक सेंटर है ओ, मानो कि ए ही मानो, यहाँ पे ए विल बी बेटर फॉर यू, ए। तो यहाँ पे ए एंगल कितना है, एंगल ए कितना है, हाँ, हियर एंगल ए इज 180 डिग्री, एनी प्रॉब्लम? यहाँ पे एक रे ठोस दिया, यहाँ पे एक रे ठोस दिया। मानो कि ये एंगल 40 है, मानो कि ये एंगल एक्स है और ये क्या होगा, एंगल वाई। हियर आई कैन से व्हाट, क्या एक्स एंड वाई आपस में लीनियर पेयर है? ऑब्वियसली लीनियर पेयर है, बिकॉज व्हाट, एंगल एक्स और सप्लीमेंट्री भी है। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कितना हो रहा है, एंगल ए हो रहा है कि नहीं? ओके, सो व्हाट वी कैन से कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ये तुम्हारा लीनियर पेयर भी है और तुम्हारा सप्लीमेंट्री भी है, वो इज इक्वल टू 180। अभी अगर एक एंगल दिया हुआ है ना, आप दूसरा एंगल निकाल सकते हैं। अगर मानो कि ये 50 दिया है, सो व्हाट कैन यू से अबाउट वाई? वाई कितना होगा, वाई होगा आपका 130 होगी ना, 120, बिकॉज 130 प्लस 50 कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। दैट इज वाई आपस में क्या, लीनियर पेयर। नॉट क्लियर? हाँ, clear or not? Okay, you can find any angle if the sum is given to you. Very good. Now let us move to the next point. What is that? VOA. And the short form of linear pair, how we write it as? LP. LP means linear pair. Because every time we have to use this word, is not it? So why to learn it again and again? We use what? We use LP. Clear, my dear? Okay. Now let us move to the next point. That is what? That is what? Vertically opposite angle. Vertically opposite angle. Very good. Remember it. Vertically opposite angle. Number 5. Vertically opposite angle. Vertically opposite angle. The short form what we write? How we write any short form? We write as VOA. VOA means what? VO means vertically opposite angle. ठीक है? तो अभी लिखो if two line or line segment intersect each other, then the opposite angles are called what? Called
vertically opposite angle. In short form, it is called VOA. VOA. Any doubt up to here? Huh? Okay. For example, I am taking two rays. Suppose एक रे है और एक रे है. एरे मानो, लाइन साइन मानो. तो क्या हो रहा है देखो आपस में, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल ऑपोजिट है. अगर ये x है तो ये y है. रिमेंबर, देन वी कैन से दैट x इक्वल टू y. क्यों? VOA, दे आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. अगर ये एंगल P है और ये Q है, आपस में क्या होगा? अगर ये P है ये Q है तो क्या होगा? ये आपस में क्या होगा? Then we can say that angle P is equal to angle Q by what? VOA. एक very important note, the golden rod note लिखो, खतरा note लिखो ये, NOT, that VOA means what? हाँ, VOA means what? Vertically opposite angle. VOA are always equal. Are always equal. VOA are always equal. याद रखना, VOA are always equal. पूरा क्लियर हो गया? Now listen, the next point is what? Intersecting lines and non-intersecting line. कुछ भी नहीं टॉपिक में, easy है. You already know this word, is not it? Intersecting is what? When any line or ray or any line segment, okay, cross over each other. Cross over each other. मानो कि लाइन मानो कि ए बी एक लाइन एन सेगमेंट है, ए बी सी डी, दे क्रॉस ओवर इच अदर, सो दे आर कॉल्ड व्हाट? इंटरसेक्टिंग लाइन. हो गया? लेट मी आस्क ए क्वेश्चन टू हुम? टू मिस्टर रिजॉइस. इट इज ए, सो ए लाइन इज ए बी, ओके? इट इज व्हाट? बी सी, द लाइन. आर दे इंटरसेक्टिंग? आर दे इंटरसेक्टिंग लाइन? हम क्या बोले? ये इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन. ये एक्सटेंड करेगा इसको. अगर तुम अगर एक्सटेंड करेगा, क्या ये क्रॉस होगा ना इसके ऊपर में, तो कैसे बोल सकते कि इंटरसेक्ट नहीं है? ये समझ में नहीं आया कि मानो कि एक ऐसे और एक ऐसे, क्या इंटरसेक्ट नहीं है लोग? ऑब्वियसली, बिकॉज लाइन हैज नो टर्मिनेशन, इज नॉट इट. अगर ये लाइन बोला है ना, हम तो सेगमेंट नहीं बोला है ना. लाइन मीन्स व्हाट? व्हिच हैज नो एंड पॉइंट. व्हाट इज लाइन? A line is a straight path which has no end point. That means what? You can extend also. अगर उसको extend कर दिया, क्या लग गया? ये क्रॉस होगा कि नहीं? So can you say they are intersecting? They are not, or they are not what? Not intersecting. They are what? They are intersecting line. अभी समझ में आया? Now if I say suppose this is A now. Suppose this is A, it is B, means A B एक लाइन मान सकते हैं आप. देखिए एक साइड है, इसका पैरेलल से और एक लाइन है. मानो कि वो लाइन है, वो सी डी मान लो लाइन सेगमेंट. क्या आर दे इंटरसेक्टिंग? सोचो, आर दे इंटरसेक्टिंग? व्हाट कैन यू से? व्हाट इज इट? इट इज ए नॉन इंटरसेक्टिंग. व्हाई? हाउ कैन यू से नॉन इंटरसेक्टिंग? बिकॉज इट इज अ पैरेलल लाइन. आपस में ये आपस में पैरेलल है कि नहीं? ये आपस में पैरेलल नहीं है क्या? अगर बढ़ाएगा भी क्या होगा? तो वो पैरेलल होते जाता रहेगा, ये कभी भी आपस में मिल नहीं है. If you extend this side also, what happen? You cannot find that they are intersecting or overlapping toward each other. So what? We can say that it is a non-intersecting line. It is what? It is intersecting. It is intersecting lines. It is also intersecting. मानता ये नहीं है तभी क्या होगा? इंटरसेक्ट होगा एक टाइम में जाकर, इंटरसेक्ट होगा, है कि नहीं? इंटर लेकिन है नहीं ऐसे बात तो समझाएगा इसको. हाँ बोला है एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, क्या इंटरसेक्टिंग है? हाँ, कहाँ दिखाई तो नहीं मिल रहा है ना? हाँ दिखाई नहीं मिलता है, लेकिन वजह है. कोई आज दारू पी लिया, कुछ नहीं हुआ इसका, वह बिमल खा लिया, है कि नहीं? क्या ला? कुछ नहीं सर, आई एम फाइन सर, है कि नहीं? आई एम फाइन. लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या कर रही है? उसका अभी खाएगा तो उसका इफेक्ट नहीं मालूम चलेगा उसका, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा? उसका असर मालूम चलेगा. सेम थिंग, तो इसका भी लॉन्ग टर्म में असर मालूम चलेगा कि ये झगड़ा होगा ना नहीं होगा. झगड़ा हो गया तो क्या? इंटरसेक्टिंग. झगड़ा नहीं हो पाया तो क्या हो गया? नॉन इंटरसेक्टिंग. क्लियर हो गया? सो
इट इज इंटरसेक्टिंग ऑल्सो, इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। ये आपस में पैरेलल है, ये आपस में क्या था, पैरेलल है। इफ हियर आई कैन से दैट हियर ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, सी डी। हियर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए बी एंड सी डी आर व्हाट, आर पैरेलल। तो क्या होगा, नन, हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। आई डोंट नो हाउ व्हाट यू अंडरस्टूड, इट इज क्लियर। डेफिनेशन लिखा उसका, हाँ तो लिखो, ऐसे इजी तो है कि इफ एनी टू लाइन क्रॉस ओवर इच अदर और टेंड टू बी क्रॉसिंग दैट इट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, लिखो बढ़िया से। लुक हियर माय डियर, वेरी इंटरेस्टिंग, very easy also. What is interesting line? How can we define it? Means if any two lines cross over each other or tends to be crossing. Tends का मतलब होता है कि जो जाने वाला है, क्रॉस होने के लिए जाने वाला है, होने जा रहा है, होने वाला है, ठीक है, to be crossing are called intersecting line. जैसे कि ये वाला लाइन क्या आपस में intersecting है, suppose A, B, C, D, they are crossing, they are intersecting. मानो कि और एक लाइन मानो कि ऐसा मानो कि ए बी है और ये सी डी है, ये ए बी है, ये सी डी है। लग रहा है कि ये क्रॉस नहीं हो रहा है ना, लेकिन हो रहा है अल्टीमेटली। व्हेन यू टेंस बढ़ाएगा तो देखो क्या क्रॉस हो रहा है कि नहीं है। सो दे आर आल्सो क्रॉसिंग। क्लियर। नाउ व्हाट इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन? इफ एनी टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर दे आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और दे आर आल्सो कॉल्ड वन मोर थिंग, पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स। ओके, ऐसा वाला चीज़ दोनों आपस में पैरेलल है, मानो कि ए बी और सी डी, ये ए बी सी डी। एनी प्रॉब्लम? दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर नेवर मीटिंग ईच अदर। इफ यू एक्सटेंड ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, बोथ साइड। आई होप यू कैन फील इट वेरी नाइसली। ओके फाइन। ओके, नेक्स्ट इज एक्सियोम। एक्सियोम आई टोल्ड यू, एक्सियोम मतलब क्या, एक कहावत है, स्टेटमेंट, इसका प्रूफ नहीं है, ठीक है ना, इसका कुछ प्रूफ नहीं है। तो हम बोल दिया कि करमजीत अच्छा लड़का है, एक्सियोम है, एक बोल दिया, बट आई डोंट हैव प्रूफ कि अच्छा लड़का है बोल के, हमको लगा असल तो बोल दिया। तो सेम थिंग, कुछ थ्योरम होता है। थ्योरम का मतलब क्या होता है कि जिसको प्रूव है, इसका इट इज कॉल्ड थ्योरम। क्लियर। नाउ लुक हियर, एक्सियोम 6.1 ये नहीं आएगा एग्जाम में, जस्ट यू हैव टू कीप इन योर माइंड टू सॉल्व द क्वेश्चन, वेरी इजी। It says that if a ray is stand on a line, मानो कि ये एक लाइन है, मानो कि ये एक लाइन है, ओके, मानो कि लाइन L है, इसका ऊपर एक रे खड़ा हुआ है। क्या खड़ा हुआ है? मानो कि ये रे खड़ा हो गया, तो आपस में ये क्या एडजस्टेंट नहीं है क्या, है कि नहीं? दो एंगल वाला कि नहीं, ये एंगल x मानो, ये एंगल y मानो, वन एंगल। सो दिस एंगल आर व्हाट, आपस में क्या हो रहा है, एडजस्टेंट हो रहा है। और ये लाइन का ऊपर खड़ा होता है, एक लाइन का एंगल कितना होता है, 180। तो ये दोनों आपस में कितना एंगल होगा, 180। क्लियर हो गया ना समझ में? दैट मीन्स हियर आई कैन से दैट, रिमेंबर इट, एंगल x प्लस एंगल y विल डेफिनेटली इक्वल टू 180 डिग्री। आया समझ में? एंड दे आर ऑल्सो, हम लोग क्या बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं कि नहीं इसको। और लीनियर पेयर होगा कि नहीं, लोग लीनियर ऐसा वाला देर ऑल्सो लीनियर पेयर। तो हम लोग और क्या बोल सकते हैं, नंबर 1 कि एक्स एंड वाई आर वाट, एडजेसेंट एंगल। क्या है, एडजेसेंट है कि नहीं, एडजेसेंट एंगल है, बढ़िया है। और क्या है, नंबर 2 क्या है, एक्स एंड वाई आर वाट, आर क्या, आर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री है कि नहीं, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री। Next is what? X and Y are what? Are linear pair. Are linear pair. हाँ समझ में? Very strong point. You remember, if a ray, so this, if a ray stand on a line, the sum of two adjacent angle will equal to 180 degree. इतना clear हो गया? Clear हो गया? Very good. Next axiom. Okay, very good. This is the next statement, next axiom. That is axiom 6.2. It says that क्या बोला यहाँ पर देखो, if the, अभी देखो पहला वाला एग्जाम क्या बोला था, पहला वाला एग्जाम ये बोला था कि if a ray मानो कि ये लाइन है, if a ray stand on a line,
देन आपस में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, वो 180 होगा. मीन्स एक्स और वाई मिलके क्या हो रहा है, 180 होगा. लेकिन ये एग्जाम उसका उल्टा है, लीनियर पेयर का उल्टा है. क्या बोला है, if the sum of two adjacent angle, 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 if the sum of two adjacent angle is 180, then none common arms, ये एक आर्म्स है, ये एक आर्म्स है. आर्म्स क्या था, एंगल का दो बाहु है कि नहीं, दो हाथ है, दो हाथ. देन दिस दो हाथ आपस में क्या बनेगा, एक लाइन बनाएगा. यही तो बोला है यहाँ पर, है कि नहीं, समझ में नहीं आया, है कि नहीं. अगर आपस में अगर 180 होगा, अगर आपस में 180 होगा तो जो बाहु है, जो वर्टेक्स है, जो आर्म्स है उसका, दे विल फॉर्म व्हाट, एक लाइन. सो दिस वर्टेक्स इज व्हाट, मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज ए लाइन, दिस इज ए लाइन. इसलिए तो 180 बना ना. क्लियर. दिस एग्जाम 2 नंबर 2 मीन्स सो लर्न मत करो, जस्ट समझो, हो गया. None to by heart it, just understand. Clear? Now this is the next one. Next theorem 6.1. It says that if two lines intersect each other, then VOA, vertically opposite angles are equal. Obviously हम तो बोल चुके हैं पहले भी. If two lines, suppose this is a line, मानो कि line L1 है, this is another line. ये line क्या है, L2 है. यहाँ पास में क्या है, इंटरसेक्ट कर चुका है. तो इसका जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ये एंगल विल बी इक्वल टू ये एंगल, और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल. ये बोला कि नहीं, यही बोला यहाँ पर. दैट मीन्स हियर इफ आई से दैट दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड दिस इज पी एंड दिस इज क्यू. इट इज सेज दैट हियर इट इज गिवन, हियर क्या बोला, हियर क्या बोला कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल y एंड एंगल p इज इक्वल टू एंगल q. समझ में आया कि नहीं, ये बोला है. हम प्रूव करते हैं जिसको, शैल आई प्रूव इट. ये q ऑपोजिट y वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, y वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर इक्वल. शैल आई प्रूव इट. लुक हियर माय डियर, लुक हियर, लुक हियर, वी आर डूइंग प्रूफ. उसको प्रूफ करते, देखो क्यों बोला, ये कैसा हो रहा है. ये क्या ये एक लाइन है, क्या L1 क्या है, एक लाइन है, ठीक है. इसके लिए ये मानो कि यहाँ पे देखो एक लाइन है कि नहीं है. तो हमको कौन बोल सकेगा कि एंगल x और q मिले कितना हो रहा है, 180. इतना सहमत है आप लोग, आर यू एग्री. वेरी गुड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक. देखो हियर L1 इज ए लाइन, ठीक है ना. तो हम लोग बोल सकते हैं, सो हम बोल सकते हैं कि एंगल x देखते हैं, x प्लस एंगल q कितना होगा, 180. एनी प्रॉब्लम, y q बोलो, q होगा. एग्जाम 6.1 में बोलता था ना. यहाँ पे लिखो, इसको लिखो यहाँ पे कि स्ट्रेट एंगल, क्या लिखो यहाँ, या फिर सप्लीमेंट्री एंगल लिखो, सप्लीमेंट्री एंगल. एनी प्रॉब्लम, यूज 180. क्लियर हो रहा है समझ में. वेरी गुड, फैंटास्टिक, वेरी नाइस. अभी देखो व्हाट इज एंगल x. एंगल x क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एंगल x तक, एंगल कैसे मालूम चलेगा 90 बोल के, देखो ध्यान से. एंगल x देखो ध्यान से, यहाँ पे एंगल x इज इक्वल टू व्हाट, 180 माइनस एंगल q. इतना प्रॉब्लम है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मानो कि इक्वेशन 1, उसको इक्वेशन 1 मानो. सिमिलरली क्या हम लोग क्या L1 में इन लाइन L2, देखो इन लाइन L2, देखो इन लाइन L2 हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो तो बाबू, एंगल y प्लस एंगल q क्या होगा, क्या 180 होगा. ये लाइन L2 में क्या एंगल y और q मिलके क्या 180 नहीं होगा. नहीं समझ में आया. हाँ, वेरी गुड, गिव योर रेस्पॉन्स मेरी मैन. सो लुक हियर माय डियर, वी कैन से दैट एंगल y इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, 180 माइनस एंगल q. इसको उधर लेके क्या माइनस q आएगी नहीं. ये इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन 2. इफ यू कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, आपको क्या मिलेगा, देखो तो एंगल x ऑल्सो इक्वल टू 180 माइनस q, एंगल y ऑल्सो इज इक्वल टू 180 माइनस q. दैट मीन्स व्हाट, इफ यू कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, व्हाट कैन यू राइट, दैट कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, comparing equation
1 and 2, I can write that angle x equal to angle y. क्या समझ में नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? इतना ईजी है. देखो, अगर एंगल x इक्वल टू ये, अगर एंगल x इक्वल टू ये, अगर y इक्वल टू भी ये, मतलब दोनों का राइट हैंड साइड बराबर हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा. नहीं आया समझ में? मानो एग्जाम्पल ऐसे मानो कि अगर x का पास भी 5 रुपया है, y का पास भी 5 रुपया है, तो मतलब क्या है? दोनों बराबर नहीं है क्या? दैट मीन्स x और y बराबर का मुकाबला का है. समझ में नहीं आएगी? मानो कि सेक्शन ए में किसी एक लड़की को 95 मीटर मिला. सेक्शन ए में 95, सेक्शन बी में 95. इसका मतलब क्या है? सेक्शन 1 का और सेक्शन बी का बराबर ताकत है. वही बोला है. द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर आल्सो. इफ x इक्वल टू 180 माइनस q, y also 180 माइनस q, दैट मीन्स व्हाट? x एंड y इक्वल टू x एंड y. तो हम लोग प्रूव कर चुका है कि नहीं? ये x और y इक्वल है. हैंस प्रूव. ये प्रूव हो गया कि नहीं? प्रूफ. सिमिलरली वी कैन से दैट एंगल p इक्वल टू एंगल q. उसके लिए प्रूव करना जरूरी नहीं है, ऐसा ही प्रूव करने वाला है. यहाँ पे क्या लिखे होगे? जस्ट राइट सिमिलरली एंगल p इज इक्वल टू एंगल q. हैंस प्रूव्ड. ये है आपका प्रूफ. आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबडी ऑफ यू. हाँ, एवरीवन क्लियर?